Battle of Karbala. Battle of Karbala. معركة کربلا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو عراق کے ایسے شہر کی زیارت کروانے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے مقدس شہروں میں سے ایک ہے، جہاں محرم کے مہینے میں کروڑوں کی تعداد میں زائرین جاتے ہیں، جہاں جانے کے بعد آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جی ہاں، آج ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں کربلا شہر کی. کربلا شہر کب آباد ہوا اور اس شہر کے مقدس مقامات کون سے ہیں؟ کربلا شہر میں 9 اور 10 محرم کو لوگ کیا کرتے ہیں اور کیسا ماحول ہوتا ہے؟ اس شہر میں لوگوں کی زندگی کیسی ہے؟ اس کے علاوہ اس شہر کے بارے میں بہت سے ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے. چلیں اب نکلتے ہیں کربلا شہر کے ایک تاریخی سفر پر. کربلا عراق کا ایسا شہر ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی اہمیت کی وجہ 10 محرم 61 ہجری کو ہونے والی کربلا کی جنگ ہے. کربلا کا شہر اسلامی تاریخ سے بڑا ہوا ہے. کربلا کی تاریخ یاد کر کے ہر مسلمان کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہیں. کربلا کی جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی. کربلا شہر کی کل آبادی 10 لاکھ کے قریب ہے. اس شہر کا کل رقبہ 42 مربع کلومیٹر ہے. کربلا شہر بغداد سے 103 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ نجف سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. آج اس شہر میں کروڑوں مسلمان زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں. خاص طور پر شیعہ زائرین بڑی تعداد میں آتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق 2 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں نے اس شہر کی زیارت کی، جس میں ہر سال 9 سے 10 محرم کے درمیان 1 کروڑ 50 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس شہر میں موجود ہوتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے کربلا کے ساتھیوں سے محبت اور عقیدت کا نتیجہ ہے. دوستو، یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں. واقعہ کربلا سے پہلے یہ شہر نہیں تھا، بلکہ صرف ایک ریگستان اور میدان جنگ تھا. اس جنگ کو بیٹل آف کربلا کہا جاتا ہے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، جس کے بعد کربلا میں ہی ان کا روزہ مبارک بنایا گیا اور لوگوں نے یہاں آباد کاری شروع کر دی. آبادی کا آغاز بھی آپ کے روزے کے چاروں اطراف سے ہوا، جس کے بعد یہ مکمل طور پر شہر بن گیا. اگر آپ نقشے میں دیکھیں گے تو یہ مقدس شہر عراق کے وسط میں واقع ہے. کربلا شہر کے لوگوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ یہاں آنے والے کروڑوں زائرین ہیں، کیونکہ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ شہر لوگوں سے بھر جاتا ہے اور ہر طرف حضرت امام حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. کربلا شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. قدیم کربلا، جہاں زیادہ تر مقدس مقامات موجود ہیں، جبکہ کربلا شہر کے دوسرے حصے میں لوگ رہائش پذیر ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک کے چاروں اطراف میں بازار موجود ہیں، اور یہ بازار قدیم زمانے کے ہیں. آپ کسی بھی بازار سے گزریں گے تو اس کا راستہ آپ کے روزے کی طرف ہی جائے گا. ان بازاروں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں بنائی گئی ہیں. اسٹریٹ فوڈ اور ریسٹورنٹ بڑی تعداد میں آپ کو نظر آئیں گے. عراق کے روایتی کھانوں کا مزہ آپ یہاں آ کر لے سکتے ہیں، جیسے عام طور پر ناشتے میں انڈا، بینز اور دیسی گھی ڈال کر دیا جاتا ہے. اس ناشتے کے بعد عراقی چائے بھی بہت مزیدار ہوتی ہے. انہی بازار سے گزرتے ہوئے ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں کربلا کی تاریخ دوبارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کے ایک لشکر کے سپہ سالار سے میٹنگ ہوئی تھی، جس میں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جنگ کی 1 دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم عبادت کر سکیں، اس کے بعد آپ جنگ کر سکتے ہیں. بازار سے جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو بہت بڑی شرائن نظر آئے گی. دوستو، کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ امیہ خلافت کا اس وقت کا لیڈر یزید تھا، اور وہ چاہتا تھا میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے، جبکہ یزید کی طرز حکومت سے کوئی بھی خوش نہیں تھا. اس دور میں یزید دمشق میں رہتا تھا. کوفہ ایسا علاقہ تھا جہاں حضرت علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی تھی، اور کوفہ ہی اس وقت اسلام کا کیپٹل تھا. کوفہ کے لوگ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جائے. کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے اور اپنے پاس بلایا. آپ یہاں آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ ہمیں لڑنا بھی پڑا تو ہم آپ کے ساتھ جنگ میں حصہ لیں گے. لیکن کوفہ کے لوگوں نے دھوکہ دیا، جس کے بعد 10 محرم کو واقعہ کربلا پیش آیا. یہ واقعہ صرف مظلوم اور ظالم کے درمیان نہیں، بلکہ جرأت، حق اور بہادری کے ساتھ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا اور اللہ پر یقین رکھنے کا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں 72 لوگ تھے، جبکہ یزید کے لشکر میں 4000 سے بھی زیادہ لوگ تھے. اس زمانے میں آپ نے کربلا کے مقام پر اپنے خیمے لگائے، جہاں دور دور تک ریگستان اور پانی کی بھی قلت موجود تھی، یہاں تک کہ یزید کی فوج نے پانی بھی بند کر دیا. جبکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چھوٹے بچے بھی موجود تھے،
क्योंकि आप अपने सारे खानदान के साथ तशरीफ लाए थे। इसके बावजूद आपकी हिम्मत में जरा बराबर भी कमी ना आई और इसकी वजह थी अल्लाह पर यकीन। 3 दिन तक पानी के बगैर वक्त गुजारा, जहां रेगिस्तानी गर्मी भी अरूज पर थी। आखिरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके खानदान वालों को जंग में शहीद कर दिया गया और आज इसी जगह आपका रोजा भी मौजूद है। रोजे के करीब बाजार में भी बहुत मुकद्दस मकामात मौजूद हैं, जिनको जालियों की मदद से बंद किया गया है। चलें अब आपको रोजे की तरफ लेकर चलते हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के बिल्कुल साथ आपके भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा भी मौजूद है, जो करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहम साथी थे। ये है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक, जहाँ से आप एक बड़े दरवाजे से दाखिल होने के बाद नीचे की तरफ जाते हैं और सामने आपको बहुत खूबसूरत गोल्डन दरवाजा नजर आएगा, जिस पर सोने का काम किया गया है। इस दरवाजे के बाहर एक सहन मौजूद है, जहां लोग नमाज अदा करते हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज के सिपा सलार थे। जब आपके खानदान के लोग शहीद हो चुके थे और सिर्फ बच्चे ही बचे थे, तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बच्चों के लिए पानी लेने गए थे। आपको इसी वजह से इनके रोजे के ऊपर एक मश्क भी लगी हुई नजर आएगी और ये मश्क ही इस वाक़े की अलामत है। जब आप पानी के लिए गए तो आपको रास्ते में शहीद कर दिया गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा भी अंदर से बहुत खूबसूरत और नक्शो नगार से भरा हुआ है। मुहर्रम के अयाम में यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के बाहर एक एरिया है, जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे के दरमियान बनाया गया है। इसे बैनुल हरमैन भी कहा जाता है। ये जगह 2 रोजों को आपस में मिलाती है। ये तकरीबन 250 मीटर लंबा एरिया है। ये वही जगह है जो अरबैन वॉक से चलते हुए लोग यहाँ आते हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि करबला की जंग में सबसे ज्यादा शहीद इसी जगह हुए थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे में दाखिल होते ही आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। ये वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में खेला करते थे, जिन्होंने अपना बचपन भी जन्नत के टुकड़े पर गुजारा है, जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। शराइन के अंदर ही एक म्यूजियम भी बनाया गया है। ये पिलर इसी बात को जाहिर करता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नीचे का पिलर जाहिर कर रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस्लाम ऐसे मजबूत था। इसके बाद इस्लाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और दरमियान का हिस्सा करबला को जाहिर करता है और ऊपर का पिलर जाहिर करता है कि करबला के बाद दोबारा इस्लाम मजबूत हुआ। यहाँ इन लोगों के नाम भी लिखे गए हैं जिन्होंने आपके रोजे पर हमला करने की कोशिश की थी। ये तमाम चीजें उस दौर की चीजों से तशबीह के तौर पर रखी गई हैं। इस म्यूजियम में एक बहुत खूबसूरत कारपेट भी रखा गया है। इस कारपेट को बनाने में 8 साल लगे थे। ये कारपेट करबला की जंग को जाहिर करता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम भी बहुत वसी बनाया गया है और अंदर से भी इंतहाई खूबसूरत है। ये वो जगह है जहां आपको शहीद किया गया था। इसके अंदर रंग लाल रखा गया है। हरम के चारों इतराफ में नक्शो नगार किए गए हैं। आपके रोजे मुबारक की इन जालियों को जरी कहा जाता है। दोस्तों, करबला के नाम के बारे में मुख्तलिफ राय हैं। करबला का एक मतलब नरम जमीन है और एक मतलब ये भी समझा जाता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि एक ऐसी जमीन है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर मुसीबत और अजियत दी जाएगी। तो अजियत देने वाली जमीन का मतलब भी करबला कहा जाता है। हरम के करीब नहर फरात है, जहां 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया था। ये जो आप जगह देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी भरने के लिए आए थे। दोस्तों, आपने मक्का और मदीना शरीफ में देखा होगा कि लोगों को व्हील चेयर पर बैठा कर ले जाया जाता है और इसका कुछ मुआवजा भी लेते हैं। ऐसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के करीब रेडी वाले मौजूद होते हैं। जो लोग पैदल ज्यादा नहीं चल सकते, वो इस पर बैठकर जा सकते हैं। आप ये जो देख रहे हैं, इसे अरबी में हुब कहा जाता है। इराकी लोग ये बीज बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। इराकी खानों में अक्सर हुमस और अचार पेश किया जाता है, जो लोग रोटी और चिकन के साथ खाते हैं। दाल का सूप इराक में बहुत शौक से पिया जाता है, जिसे लेंटल सूप कहा जाता है। हरम के इस रास्ते पर लोगों का रश आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा। दोनों इतराफ में दुकानें मौजूद हैं और गर्मी से बचने के लिए कपड़े की छत भी लगाई गई है। पूरे इराक की निस्बत इस शहर में सबसे ज्यादा अमन है। इस पूरे शहर में बुलंदो बाला इमारतें ना होने के बराबर हैं, लेकिन करबला बगदाद और दूसरे शहरों से ज्यादा डेवलप है। खूबसूरत रेस्टोरेंट और दुकानें शहर के मुख्तलिफ हिस्से में मौजूद हैं। इराकी आइसक्रीम भी बहुत मजेदार होती है। आप जब भी जाएं तो आइसक्रीम जरूर खाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों, आप ये जरूर देखना चाहेंगे कि
कि 10 मुहर्रम का दिन करबला में कैसा होता है। 10 मुहर्रम को पूरे शहर में लोग सड़कों पर आ जाते हैं, जुलूस की शक्ल में हाथ में झंडे लिए होते हैं। इराकी लोग 10 मुहर्रम के दिन जोहर की नमाज के बाद पूरे शहर से लोग भागना शुरू कर देते हैं। ये तमाम लोग भागते हुए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की तरफ जाते हैं। गर्मी की वजह से हर जगह इन पर पानी फेंका जाता है और पानी की सबीलें भी हर जगह लगाई जाती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब आपको किसी के गम की खबर मिलती है तो आपकी कैफियत भी यही होती है कि आप उस तरफ भागते हैं जहाँ से गम की खबर आई होती है। ऐसे ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी जोहर के बाद शहीद किया गया था। इस कैफियत को दिखाने के लिए ये किया जाता है। सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाती है। चलें अब आपको वो जगह की ज़ियारत करवाते हैं जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे लगाए गए थे। इसे खैमा अल हुसैन भी कहा जाता है। अगर आप हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे से किबला गेट से बाहर निकलेंगे तो शारे बकिया से होते हुए आप शारे जमहूरिया से खैमा अल हुसैन पर पहुंच जाएंगे, जो सिर्फ 10 मिनट के मुसाफत पर वाक़या है, जहां जाकर आप तारीख के उस वक्त को दोबारा याद कर सकते हैं। दोस्तों, करबला के लोग भी बहुत मेहमान नवाज होते हैं, पूरी दुनिया से आने वाले ज़ायरीन की बहुत इज्जत करते हैं और अच्छे तरीके से पेश आते हैं। इस शहर में मिलने वाले खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं। मीठे खानों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। 10 मुहर्रम के बाद करबला के शहर की रौनकें एक बार फिर आबाद होती हैं। इसे अरबैन वॉक कहा जाता है, जो नजर से करबला की तरफ लोग पैदल सफर करते हैं। ये रास्ता तकरीबन 80 किलोमीटर का है। कुछ लोग सफर गाड़ी पर करते हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर पैदल भी करते हैं। रास्ते में खाने पीने का तमाम इंतजाम बिल्कुल मुफ्त होता है। पैदल चलने वाले लोगों की बहुत ज्यादा खिदमत की जाती है। पूरे रास्ते में 1452 पोल लगाए गए हैं। पहला पोल नजफ में और आखिरी पोल करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक के करीब वाक़या है। रास्ते में बहुत से मौक़िफ़ मौजूद होते हैं जहां ज़ायरीन की बहुत खिदमत की जाती है और ज़ायरीन रात भी गुजार सकते हैं। इस सफ़र को लाखों की तादाद में लोग करते हैं और करबला में एक बार फिर लोगों का रश होता है। अरबैन वॉक आम तौर पर 16 से 17 सफ़र में शुरू होती है। करबला में 5 स्टार होटल का किराया $150 से $400 एक रात का है, जिसमें करबला बेबलोन होटल और कसर अल मेहराब शामिल हैं। लेकिन मुहर्रम में किराया बहुत ज्यादा हो जाता है। इस शहर की GDP $12 बिलियन है, जिसमें 70% टूरिज्म सेक्टर से आमदनी होती है। इस शहर में 98% अरब शिया मुस्लिम रहते हैं, बाकी 2% सुन्नी मुस्लिम, मसीही और कुछ यजीदी भी आबाद हैं। यहाँ रहने वाले लोग पूरे इराक की निस्बत सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। करबला का लिटरेसी रेट 85% के करीब है। दोस्तों, ये शहर मक्का, मदीना और बैतुल मुकद्दस के बाद मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है। गरूर टूट गया, कोई मर्तबा ना मिला, सितम के बाद हासिल जफा ना मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के ईमान हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ईमान की तरह मजबूत बनाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।